Up joining us, Swapnil Kothari is a lawyer. Bilal Khan here with me in the studio, lawyer, political analyst. Swapnil Kothari and Bilal Khan, good evening to both of you. Mr. Kothari, let's begin with you. What do you make of the verdict today and the implications? Well, Pranesh, this was very much expected. In fact, I was with Pratibha earlier and I told that this will be the judgment. Because the suit will be maintainable. It can be held that the suit is not maintainable. Obviously, you can argue your points later on, but to say that at the very behest, at the very first instance itself, that there is no cause of action because that is what 711A says, and that is what the plea of the Muslim side was, that it is not maintainable at all because it violates the Waqf Act or it violates the Places of Worship Act. Those things are not held tenable at all. Those will be considered more so at the time of an actual argument. But to say that let's not get into that issue at all, that whether or not this was a masjid earlier or whether this was a temple earlier, all of those things do not really come into the way of the court. We lawyers have this habit of putting up technical arguments, and we are very much empowered to do that. We are very much within our rights to do that. And obviously the Muslim side was very much within its rights, but the courts normally do not tend to entertain those kind of technical pleas because they say, let's discuss this on merit. Right. Let's not get into this. So that is the, it was a very clear-cut indication, and the 26-page order tells you that right away, Pranesh. So I'm not surprised at all. I knew this was going to be the verdict, and I said that. Now, Bilal Khan, the trouble is that before all of this, before the verdict today, the Anjuman Intizamiya Masjid Committee said that the land belongs to the Waqf Board, questioned the maintainability, but forget the maintainability for a bit. You could not substantiate the case in the court. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड वी ऑल और रेस्पेक्ट द कोर्ट. जिस तरीके से आपने अभी भी देखा होगा रूल 11 and 7 and 11 रूल्स के अकॉर्डिंग वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट 1991 को पूरा इसको अब तो मैं यही कह सकता हूँ ऑन द टाइम्स नाउ चैनल के अब हमारी जो इंतजामिया कमेटी है वो लोग अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लड़ेंगे और हम लोग पूरी तरीके से चाहे वो इसको कोर्ट के ज़रिए हो या फिर हमारी जो टीम है वो भी वहाँ लगी हुई है और सारी चीज़ों को कोर्ट के ज़रिए हो और दूसरा कौन सा रास्ता है? नहीं, मैं दूसरा ये बताऊंगा जो हम लोगों के बीच में कुछ लोग भ्रांति पैदा कर रहे हैं उनको समझाने का काम करेंगे. हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा करें. ये हमेशा इसमें पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे आरएसएस हो, बीजेपी, ऑल आर प्लेइंग पॉलिटिक्स इन दैट मस्जिद एंड मंदिर. ये सिचुएशन ये राम मंदिर से चल रहा है, ये अब से नहीं है. राम मंदिर का इशू ओवर हो गया, उसके बाद ज्ञान वापी कहां से आई? ये पहले से है जो 5 लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया था उस पे वर्डिक्ट है. तो इसमें ये कोई अभी ऐसा वर्डिक्ट नहीं है. अभी मैंने देखा जश्न मन रहा था, ये कोई ऐसा वो नहीं है वर्डिक्ट के आपको मस्जिद दे दी गई है या फिर यहाँ पे पूजा का अधिकार. अभी सिर्फ और सिर्फ आपको जो है रूल 7 और 11 के अकॉर्डिंग जो वर्शिप एक्ट है उसको हटा के आपको परमिशन दी, आगे चलेगा. सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, वो डेवोटीज आगे की जो मैं बता रहा हूँ सेक्शन 54 एविडेंस एक्ट के अंदर क्लियर बेस है कि हमारे पास जो एविडेंस है हम वो कोर्ट में सबमिट करेंगे और उसको पूरा बताएंगे. जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, जो हमारे मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जो हमारी इंतजामिया कमेटी है, वो लोग उसको पेश करेंगे एविडेंस को. उसको अकॉर्डिंग हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको माना जाएगा. लेकिन इसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है. इशू क्या है? अगर शिव भक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वप्निल कोठारी, व्हाट्स रॉन्ग? There is nothing wrong, Pranesh, if people are celebrating. One cannot tell that, this is a little preconceived or this has come a little earlier. If they want to celebrate, they are very much within their powers to celebrate. And I'm sure they'll have more scope for celebrations in the future as well because, to the best of my knowledge, even the High Court will never entertain pleas of this nature where you say that there is no tribal issue or there is no cause of action. Of course, there is a cause of action. And then the cause of action can be debated and argued upon by both the sides very, very vigorously when actually the matter is gone for trial. But to say that there is no cause of action or there should not be a trial is a little fallacious. This is not the final judgment. That's why I am saying this thing. This is not the final judgment. So who is saying that this is the final judgment? The devotees are only celebrating because Bilal Khan को उनको लगता है कि ये पहला जो मोड है वो उन्होंने क्रॉस कर दिया और इसीलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इसमें आप पॉलिटिक्स, आरएसएस, बीजेपी, इसमें ये सब कहां से आ गया? कोर्ट है एक तरफ है मुस्लिम पक्ष. देख लीजिए अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के मंत्री किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं. अरे तो अगर जो भक्त हैं, जो शिव भक्त है, अगर उनको लगता है कि ये एक तरह से जो भक्तों की जीत है, उनकी आस्था की जीत है, तो उसमें पॉलिटिक्स की कहां बात हो गई? ओके, मोर रिएक्शंस कमिंग इन. स्वामी प्रमोद कृष्णन इज स्पीकिंग ऑन दिस. एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में न्यायपालिकाओं के फैसले का स्वागत भी किया जाता है, सम्मान भी किया जाता है और उसे स्वीकार भी किया जाता है.
ज्ञान वापी और श्रृंगार गोरी के विषय में जो जनपद अदालत ने, जिला अदालत ने आज फैसला दिया है, उसका सम्मान भी किया जाएगा और स्वीकार भी किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का राजनीतिकरण करेगी। अभी ओवैसी साहब इसमें कूदेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम योद्धाओं को कूदाएगी, मीडिया आएगी, बाइट होंगी, इंटरव्यू होंगे, डिबेट होंगे, बहुत बहुत इतिहास के पन्ने उघाड़े जाएंगे। मुझे लगता है कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये एक ब्रह्मास्त्र के रूप में आ गया है, जिसका इस्तेमाल 2024 के चुनावों में किया जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। That there is politics involved in this, बिलाल खान, देखिए आप जो बात कह रहे थे, आपके समर्थक देखिए वो यही कह रहे हैं, लेकिन इसका बेसिस क्या है? क्योंकि ये सालों से केस चल रहा है। तो नहीं, बिल्कुल देखिए सालों से केसेस चल रहा है। हमने हर एक फैसला माना, चाहे वो राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, कहीं एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ना कहीं एक मुसलमान ने पता चला है। हम एक मानेंगे लेकिन सम्मान तरीके से। लेकिन अब जानबूझ के जब कोर्ट में सारा मैटर है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट के हिसाब से जो भी फैसला होगा उसको माना जाएगा। हम लोगों ने किया वक्शीफ एक्ट के, बट हम लोग अब इस पे ये नहीं कह रहे कि हम लोग हार गए, मान लिया। हमने अभी भी वेलकमिंग किया कि कोर्ट का जो भी फैसला आया, हमने बिल्कुल कहा अब हाई कोर्ट में हम लोग चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमारे पास 54 सेक्शन में एविडेंस एक्ट के अंदर जो हमारे जितने भी सर्वे के अंदर एविडेंस दिए गए थे वो हमारे पक्ष के जो वकील है मुस्लिम पक्ष वो रखेंगे। उसमें जो भी चीज़ आएगी अंडर दिस एविडेंस एक्ट जो भी आएगा उसको हम करेंगे, इस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी प्रमोद किशन साहब ने कहा वो बिल्कुल आचार्य साहब सही कह रहे हैं। इसमें ये 2024 में जो इलेक्शन आएगा उसमें इसको यूज किया जाएगा। बाबरी में भी यही कहा था, बाबरी में भी लोगों ने कहा था कि ये चुनाव से स्वप्निल कोठारी, इज दैट अ वैलिड आर्गुमेंट? देखिए मिस्टर खान, आई विल टेल यू प्रणेश, पॉलिटिक्स को आप इंडिया में कभी भी रिलीजन या कोई भी इश्यूज जो बड़ी होती है ना, नेशनल इश्यूज होती है ना, उससे कभी अलग नहीं कर पाएंगे। आप पॉलिटिशियंस को ये नहीं बोल पाएंगे, आप भी बोलिए, आपको भी बोलना है, अगर उनको बोलना है तो उनको बोलने दीजिए। बॉटम लाइन एट द एंड ऑफ द डे इज दैट द कोर्ट्स विल हैव अ फाइनल से इन दिस। और अगर किसी को कुछ पॉलिटिसाइज करना है, सेलिब्रेट करना है, तो आप रोक नहीं सकते, बिकॉज दिस इज अ फ्री कंट्री। अगर उनको 2024 में वो कितना हेल्प करता है, कितना नहीं करता है, वो तो तब की बात है। बट फॉर द मोमेंट लेट मी टेल यू समथिंग, दैट दिस on your 54 evidence, even when you go under section 54 and try to agitate it before the High Court, it is not going to help, because Order 7, Rule 11 is a pure technical point. So only you will have to argue on technicality. And you will also know, being a lawyer yourself, कि इतने precedents है जहां पे courts generally reject नहीं करते, first stage पे ऐसा reject नहीं कर देते। But nevertheless, you have an option, you can try. Yeah, I will try in High Court also. So, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे पक्ष ने ऑलरेडी वो फाइल कर दिया है।